Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 1st June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे. We're going to talk about the Prime Minister Care for Children scheme which has been recently launched. After this we'll see 17th Asia Media Summit followed by Jal Jeevan Mission, the issue of Goa's Statehood Day and then the Param Ananta supercomputer. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में है जो कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है. इट इज़ अबाउट PM Care for Children scheme. So the scheme is recently launched by PM for Children. So under this scheme, a passbook of PM Care for Children will be given, and along with that, a health card under Ayushman Bharat will be handed over to the beneficiaries covered under this scheme. The objective of the PM Care scheme for children is basically to support children who have lost both their parents or the legal guardian or the adoptive parent or the surviving parent to COVID-19 pandemic during the period starting from 11th March 2020. तो कोविड-19 की वजह से उन चिल्ड्रन ने जिन्होंने अपने पेरेंट या लीगल गार्डियन को लूज़ किया है, अडॉप्टिव पेरेंट और सर्वाइविंग पेरेंट जिनके कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जिनकी डेथ हुई है, फ्रॉम 11th March 2020 टिल नाउ उनको सपोर्ट करने के लिए PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च की गई है. सो अंडर दिस स्कीम it will ensure a comprehensive care and protection of children in a sustained manner. This will enable their well-being through health insurance. The scheme will empower them through education and it will equip them for self-sufficient existence with financial support. So under this PM Care for Children scheme, every month 4,000 rupees will be given to children once they turn 18 years. तो जब वो 18 ईयर्स के हो जाएंगे तब उनको हर महीने 4,000 रुपीज़ दिए जाएंगे. दिस विल हेल्प देम टू मीट देयर डेली नीड्स. इसके साथ साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोविज़न है, तो जो हमारा आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, इसके अंडर हेल्थ कार्ड्स दिए जाएंगे. सो इन केस ऑफ एनी हेल्थ एमरजेंसी, so the beneficiaries can use the health card. So this free facility of health treatment up to 5 lakh rupees, this will be made available to the children till they turn 18 years and the premium would be paid by PM Care. So this was about the health insurance. Coming to education, so PM Care would give loan for professional courses in higher education and इस स्कीम में जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो अप टू 10 लाख रुपीज़ की दी जाएगी ऑन अटेनिंग 23 years of age, basically for education, scholarship or to equip them for self-sufficiency. For this, an online portal has been created, pmcareforchildren.in. This has been launched to register the beneficiary. ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है, इसमें अप्रूवल प्रोसेस, असिस्टेंस सब कुछ इंक्लूड किया गया है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल 17th एशिया मीडिया समिट से रिलेटेड है. सो एट द एशिया मीडिया समिट हमारे पास जो यूनियन इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, दे अपलॉडेड इंडियाज़ मीडिया फॉर द रोल दैट दे प्लेड ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक. तो यहाँ से सबसे पहले हम एशिया मीडिया समिट के बारे में जानेंगे. आफ्टर दिस वी विल सी द रोल दैट हैज़ बीन प्लेड बाय मीडिया ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक. सो द एशिया मीडिया समिट ये बेसिकली Asia Pacific Institute for Broadcasting Development, along with some partners from the international organizations, they basically organized the Asia Media Summit. तो सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट. इस कॉन्फ्रेंस में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जो एशिया रीजन में काम करते हैं, उन सबको एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो अपने थॉट्स इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन, जो वो इनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो इनके थॉट्स हैं, वो यहाँ पे शेयर करें. यहाँ पे डिसीजन मेकर्स, मीडिया प्रोफेशनल्स, scholars, stakeholders of the news and programming
फ्रॉम एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, इन सब ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया. And almost all the regional and international broadcasting union and association, they support the Asia Media Summit. Then जो main organization है जो कि जिसने एशिया मीडिया समिट को ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज़ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट. इसके बारे में भी देख लेते हैं. दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 1977 अंडर यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के ऑस्पिशियस के अंदर इसे डेवलप किया गया था. इट्स अ यूनिक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. एंड यहाँ पे जो यूएन एस्केप है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसे ये एक यूनिक रीजनल सर्विस प्रोवाइड करता है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलपमेंट. इट इज़ होस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया एंड देयरफॉर इसका जो सेक्रेटरीट है वो कोलालंपुर में लोकेटेड है. एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसका मैंडेट है कि एशिया पैसिफिक रीजन में एक वाइब्रेंट और कोहेसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, अचीव करना, एंड फॉर दैट यू विल नीड सम पॉलिसी एंड रिसोर्स डेवलपमेंट. एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की जो फुल मेंबरशिप है वो जो सॉवरेन स्टेट्स हैं उनको दी गई है, एंड दे आर इन्वाइटेड टू डेजिग्नेट द ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री टू बी द बेनिफिशियरी. फ़िलहाल इसमें 26 फुल मेंबर कंट्रीज़ आती हैं. इसके साथ साथ 43 ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, कुछ 50 एफिलिएट मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के. टोटल मेंबरशिप 93 हो जाती है, जिसमें 46 कंट्रीज़ हैं, regions हैं. There are 50 partners in the Asia Pacific, Economic, Africa, Arab states and North America. So it's a whole institute जिसमें different areas के members आपको देखने के लिए मिलेंगे. एंड जो ये प्रेजेंट 17th एशिया मीडिया समिट हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है. जैसा कि हमने कहा कि इसमें हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, दे अपलॉडेड द रोल ऑफ मीडिया, दैट बेसिकली दे इंश्योर्ड कि कोविड-19 से रिलेटेड अवेयरनेस मैसेजेस रहें, गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं वो सबको पता चलती रहें, एंड इवन फ्री कंसल्टेशंस डॉक्टर्स के साथ जो थी वो भी यहाँ पे अचीव की गई विद द हेल्प ऑफ मीडिया. 17th एशिया मीडिया समिट का थीम था फ्यूचर फॉरवर्ड रीइमेजिनिंग मीडिया. यहाँ पे दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, इनका रोल भी बहुत सिग्निफिकेंट है, स्पेशली फॉर डिलीवरिंग देयर मैंडेट ऑफ पब्लिक सर्विस. एंड दिस प्रूव्ड बाय देयर रोल इन सेटिंग द ट्रेंड थ्रू प्रॉम्प्ट कवरेज, ग्राउंड रिपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स ऑन पब्लिक हेल्थ. तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली हाईलाइट होते हैं. फेक न्यूज़ की अगर हम बात करें तो जो अनवेरीफाइड क्लेम्स हैं, जो फेक कंटेंट जो मीडिया में सर्कुलेट होता है, इससे एक एटमॉस्फेयर बन चुका है विच इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सट्रीम फियर अमंग द पीपल. ऑल्दो जो भी फेक न्यूज़ का जो नेटवर्क है, इससे जो भी फेयर का एटमॉस्फेयर आया है, बट यहाँ पे PIB का जो रोल है, द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका जो फास्ट टेक यूनिट है, इसने स्ट्रांगली फेक न्यूज़ के अगेंस्ट फाइट किया है, एंड इट हैज़ समहाउ मैनेज्ड द मेनेंस ऑफ द फेक न्यूज़ एंड द मिस इन्फॉर्मेशन ऑन द रियल टाइम बेसिस. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. It is about Jal Jeevan Mission. So therefore it comes under the topic of welfare schemes for vulnerable section of population. Jal Jeevan Mission. It is in news because India has achieved the milestone of 50% of the rural household having access to the tap water connection. Jal Jeevan Mission का जो aim है, जिसे हम कह सकते हैं हर घर जल, हर घर तक जल पहुंचाना, टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाना, दिस इज़ द एम ऑफ जल जीवन मिशन. और इंडिया ने इसमें अपना पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया है विद 50% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड हैविंग एक्सेस टू टैप वाटर कनेक्शन नाउ. एंड अल्टीमेटली टारगेट तो ये है कि बाय 2024 ऑल द रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया शुड हैव अ टैप वाटर सप्लाई.
and now in 2022 50% of this is achieved. जल जीवन मिशन, जैसा कि हमने देखा कि इसका एम यही है कि हर एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड को एक टैप कनेक्शन दिया जाए फॉर ऑल दी हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया, ताकि उनको एक सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर मिल सके. एंड दिस मिशन हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाय 2024. इसके अलावा कुछ और भी फोकस एरियाज़ हैं, जैसे कि अगर हम वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो किस तरह उसे रिचार्ज करना है, रीयूज़ करना है थ्रू ग्रे वाटर मैनेजमेंट. ग्रे वाटर मैनेजमेंट इज़ जब आप अपने थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं. वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं. जल जीवन मिशन एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है एंड इसमें बहुत ही एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है. एजुकेशन, कम्युनिकेशन, all of these are important components of this mission. The aim of the Jal Jeevan mission is to create a Jan Andolan for water. और इसको हर किसी की प्रायोरिटी बनाना होगा. This mission was launched on August 15, 2019 and it comes under the Ministry of Jal Shakti. जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर जल जीवन मिशन इंक्लूड होता है. इसका फंडिंग पैटर्न अगर हम देखें तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि भाई दिस इज़ शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. यहाँ पे अगर हम माउंटेनियस स्टेट्स की बात करें, हिमालयन स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, वहाँ पे जो पैटर्न है वो 90:10 का है. 90% फंडिंग सेंटर से आती है, 10% फ्रॉम द स्टेट. बाकी सब स्टेट्स के लिए 50-50 है, 50 फ्रॉम द सेंटर, 50 फ्रॉम द स्टेट. एंड फॉर अदर यूटीज़ इट इज़ ऑफ 100%. 100% contribution by the center. Objective states और यूटीज़ को असिस्ट करना, एम्पावर करना, फैसिलिटेट करना ताकि ये मिशन पूरा हो सके. We need to plan this participatory rural water supply strategy ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हर किसी को पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, इसकी सिक्योरिटी हो. हर एक रूरल हाउस होल्ड को, हर एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन को लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक सिक्योरिटी बेस्ड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई मिलनी चाहिए. एंड हियर यू विल क्रिएट अ वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हर एक हाउस होल्ड में एक फंक्शनल टैप कनेक्शन दिया जाएगा बाय 2024. और कनेक्शन के साथ साथ एडिक्वेट क्वांटिटी में जो वाटर है, जो प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है और क्वालिटी है, उसके हिसाब से वाटर भी दिया जाएगा. So this will ensure drinking water security in India. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल गोवा से रिलेटेड है. इट इज़ अबाउट गोवाज स्टेटहुड डे. सो रिसेंटली गोवा हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे. सो इन दिस आर्टिकल वी विल नो मोर अबाउट गोवा, द हिस्ट्री ऑफ गोवा, किस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से गोवा इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं, हिस्ट्री एज वेल एज from our constitutional history. So let's begin with it. तो जब हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया जब 1947 में हमें हमारी इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे गोवा के जो लोग थे जो गोवा में रह रहे थे, दे रिक्वेस्टेड पोर्तुगीज़ टू लीव द गोवन टेरिटरी, क्योंकि उस टाइम पे गोवा के ऊपर पोर्तुगीज़ का कंट्रोल था. हाउएवर पोर्तुगीज़ रिफ्यूज्ड इट, जिसके बाद 1961 में इंडिया ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया. एंड इस ऑपरेशन विजय में इंडिया ने गोवा, दमन एंड दीव को एनेक्स किया एंड इन इंडिया का जो मेन लैंड है इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट गोवा और दमन एंड दीव, सो ऑपरेशन विजय इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसके थ्रू ये जो पोर्तुगीज़ के कंट्रोल में जो एरियाज़ थे, पोर्तुगीज़ को इंडिया से फाइनली बाहर निकाला गया और इन टेरिटरीज़ को इंडिया में इंक्लूड किया गया. इंडिया में जब गोवा शामिल होता है, गोवा एक फुल स्टेट बनता है और उसके बाद यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाते हैं. 1961 में ऑपरेशन विजय होता है और 1962 में इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं जब गोवा में श्री दयानंद भंडारकर बिकेम द फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. दिस वाज उस टाइम पे एक और चीज़ चल रही थी कि गोवा को महाराष्ट्र से मर्ज कर दिया जाए बिकॉज गोवा वॉज लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ महाराष्ट्र. बट देन in 1967
there was a referendum and the people of Goa, they chose to remain as a UT. तो 1987 में फाइनली गोवा और दमन एंड दीव को फुल स्टेटहुड दी जाती है, विच वॉज मेड, गोवा को स्टेटहुड दे दी गई और दमन एंड दीव को एक सेपरेट यूटी बनाया गया. गोवा इज़ इंडियाज़ स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया. अगर हम एरिया वाइज देखें तो स्मॉलेस्ट स्टेट है. पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो इट इज़ द फोर्थ स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन. गोवा की कैपिटल पंजिम, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कोंकणी. जोग्राफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है. हमारा जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे जो कोंकण एरिया है वहाँ पे आपको गोवा मिलेगा. जियोग्राफिकली इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम डेक्कन हाईलैंड्स बिकॉज ऑफ वेस्टर्न घाट्स. हाईएस्ट पॉइंट गोवा की स्टेट में जो हमारे वेस्टर्न घाट्स पास करते हैं दैट इज़ सोनसुगोर. एंड मेजर रिवर्स जो यहाँ पे फ्लो करती हैं दैट इज़ मांडवी एंड जुआरी. बोथ ऑफ दीज रिवर्स दे आर फेड बाय द साउथ वेस्ट मानसून. रेनफॉल अच्छी रहती है, कोस्टल एरिया है. सॉइल टाइप आपको यहाँ पे लेटराइट मिलेगा. लोकेशन अगर हम देखें तो गोवा के नॉर्थ में आपको महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट मिलता है. ईस्ट में कर्नाटका आ जाता है, कर्नाटका का बेलगाम आ जाएगा. साउथ में कर्नाटका का खरवाड़ डिस्ट्रिक्ट आ जाता है. एंड ऑन द वेस्ट यू हैव अरेबियन सी. तो नॉर्थ में महाराष्ट्र, देन योर ईस्ट और साउथ में कर्नाटका और एक तरफ अरेबियन सी. क्लाइमेट अगर हम देखें तो गोवा का जो क्लाइमेट है दैट इज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट. मैक्सिमम रेनफॉल गोवा में जून टू सितंबर में होती है ऑन द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून. थोड़ी और अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो हमारा मिडीवियल पीरियड था उस टाइम पे गोवा वाज रूल्ड बाय कदम्बा किंगडम एंड देन लेटर विजयनगर एम्पायर, ब्राह्मणी सल्तनत एंड बीजापुर सल्तनत. ये सब आप कहीं ना कहीं आप यू रीड अबाउट विजयनगर एम्पायर, ब्राह्मणी सल्तनत, बीजापुर. तो वो सब इस एरिया में गोवा को रूल करते थे. पोर्तुगीज़ 1510 में गोवा को इन्वेड करते हैं as they defeat the Bijapur's Sultanate. And in Goa, Portuguese has ruled for about 450 years and therefore Portuguese का जो culture है उसने गोवन culture को काफ़ी influence किया है. चाहे वो गोवन culture हो, cuisine हो, architecture हो, all of it is influenced by the Portuguese. Architecture की बात करें तो गोवा का जो architecture है it is combination of Goan, Ottoman and Portuguese style. जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही फेमस चर्च है बेलिस्का ऑफ बॉम जीसस. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस चर्चेज इन इंडिया जो कि 1605 में गोवा में बनाई गई थी एंड इट इज़ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और यहाँ पे जो चर्च है, चर्च का जो आर्किटेक्चर है इट इज़ नोन फॉर द बैरोक आर्किटेक्चर. एंड बहुत ही अच्छे इंटीरियर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे जो कि मोज़ैक एंड कोरिंथियन स्टाइल में यहाँ पे बने हुए हैं. वी ऑल्सो हैव चर्च ऑफ सेंट ऑगस्टीन. ये ओल्ड गोवा में ये जो चर्च है ये प्रेजेंट है. ये भी 1602 में कंप्लीट हुई थी एंड दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स आप याद रखेंगे. गोवा की कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होती हैं. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट इंडियाज़ लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर परम अनंता. परम अनंता सुपर कंप्यूटर रिसेंटली इंडिया में अनवील किया गया है. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC एंड IIT गांधीनगर, इन दोनों ने मिलकर इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर परम अनंता अनवील किया है. तो सबसे पहले परम अनंता सुपर कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. तो हमने हमारी लास्ट रिसेंट वीडियो में भी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में पढ़ा था. तो हमारा जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन चल रहा है इसके फेज़ 2 के तहत परम अनंता सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया है. एंड बेसिकली हमारा जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों का एक जॉइंट इनिशिएटिव है.
जिसके तहत ये सुपर कंप्यूटर डेवलप किए जा रहे हैं. सो राइट नाउ दिस डेवलपमेंट इज इन लाइन विद द फेज 2 ऑफ द नेशंस सुपर कंप्यूटिंग मिशन. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी प्लस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मिलकर इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है. नाउ जो कंप्यूटिंग पावर है हमारे सुपर कंप्यूटर की, दैट इज़ अराउंड 338 टेराफ्लॉप्स. ये इसकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी है. तो बेसिकली जो ये हाई पावर सुपर कंप्यूटर है, पर सेकेंड ये 838 लाख करोड़ कैलकुलेशंस कर सकता है. दिस इज़ इंडिजीनियसली डेवलप्ड. इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी असेंबली इंडिया के अंदर हुई है अंडर द प्रोग्राम ऑफ मेक इन इंडिया. रैंकिंग अगर हम देखें तो जो परम अनंता सुपर कंप्यूटर है, दिस रैंक बिहाइंड द CDAC's परम सिद्धि AI. CDAC का जो परम सिद्धि AI है, जो कि 102nd मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड में, इसकी जो पीक परफॉर्मेंस कैपेसिटी है दैट इज़ ऑफ 3.3 पेटाफ्लॉप्स. इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है परम अनंता सुपर कंप्यूटर. वर्ल्ड में 102nd रैंक पे आता है परम सिद्धि, जिसके बाद आता है परम अनंता. Now, if we talk about the application of the Param Ananta supercomputer, now because this is a supercomputer, तो ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं इसमें हेल्प कर सकता है. इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, बायो इंजीनियरिंग ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, DNA स्टडी, ये सब जितने भी ये कॉम्प्लेक्स रिसर्चेज हैं, जो कॉम्प्लेक्स स्टडीज़ हैं, वो सब ये कैरी आउट कर सकता है. इसमें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब आ सकता है. दिस कैन बी यूज्ड इन प्रेडिक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ द जीन नेटवर्क. तो जो भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ईजीली परम अनंता सुपर कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है. साथ ही में हमारे पास जो ड्रग्स के पीछे जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइंस है, उसको समझने में भी, एक पर्टिकुलर प्रोटीन को समझने में भी, किस तरह ड्रग उस प्रोटीन से बाइंड करेगा, पूरी इस मॉलिक्यूलर स्टडी में भी ये कंप्यूटर हेल्प करेगा. इसमें और भी मल्टीपल एप्लीकेशंस की जा सकती हैं. इसे वेदर और क्लाइमेट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. तो यहाँ से हमें एक और चीज़ क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज़ अ सुपर कंप्यूटर. देखिए, कोई भी ऐसा कंप्यूटर जिसकी जो कंप्यूटेशनल कैपेसिटी है वो एज़ कम्पेयर टू द जर्नल कंप्यूटर, जिसको आप जर्नल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उसके कंपैरिजन में जो कंप्यूटेशनल कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो, उस कंप्यूटर को आप सुपर कंप्यूटर कहेंगे. सो द कंप्यूटर विद हाई लेवल कंप्यूटेशनल कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू द जनरल कंप्यूटर इज़ कॉल्ड एज सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसे फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है, which is basically floating point operation per second. Floating point operations per second. Instead of using MIPS, which is million instructions per second, supercomputer की आप performance को देखते हैं in flops, floating point operations per second. Supercomputer definitely they're expensive. इनको स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है. मोस्टली वो सभी तरह की एप्लीकेशंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह वेदर फोरकास्टिंग जैसे कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी. इसके अंदर जितनी भी साइंटिफिक सिमुलेशंस हैं, कोई ग्राफ है, कोई भी फ्लूइड डायनेमिक सर्कुलेशन है, इन सब की इंटरप्रिटेशन, इन सब की कैलकुलेशन बहुत जल्दी और बहुत फास्ट होती है. एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइनिंग हो, चाहे जियोलॉजिकल डाटा की एनालिसिस हो, एवरीथिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग दी सुपर कंप्यूटर. नाउ यहाँ पे USA का जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है, विच इज़ रन बाय द ओक रिज लीडरशिप कंप्यूटिंग फैसिलिटी, दिस वाज ऑफिशियली रैंक्ड एज द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. एंड इसने बेसिकली फुगाकू एक सुपर कंप्यूटर है, इसे भी आउट परफॉर्म कर दिया था. So now Fugaku is the second most powerful supercomputer in the world, and at the top we have United States of America's Frontier supercomputer. Then we should also know what is the National Supercomputing Mission. तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है ताकि हमारे जो इंडिजीनियस एफर्ट्स हैं स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी, ये इंक्रीज़ हो सकें, बूस्टअप हो सकें, और अल्टीमेटली हम हमारे सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाकर
इंडिया का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें इसको यूज़ कर सकें। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा सुपर कंप्यूटिंग मिशन है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही है इट इज़ डन बाय 2 लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखेंगे, इनिशिएटिव दो, एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। इसे इम्प्लीमेंट 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। वन इज़ CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, and the other one is Indian Institute of Science, Bangalore. And their objective is simple. They want to increase the computing demand of our scientific and research community. कोई बायोटेक्नोलॉजी में ज़रूरत है, जीन्स की स्टडी के लिए चाहिए, आपको वेदर एंड क्लाइमेट की फोरकास्टिंग के लिए चाहिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए चाहिए। तो जो कॉम्प्लेक्स रिसर्चेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, ईजी करने के लिए वी आर डेवलपिंग सुपर कंप्यूटर। हम हमारे जो कंप्यूटेशनल स्किल्स हैं, जो कैपेबिलिटी है, उसे इंक्रीज़ कर रहे हैं। नाउ ऑल ऑफ दीज आर इंडिजीनियस। तो इसके साथ गवर्नमेंट का जो विजन है ऑफ डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया, वो सब हम यहाँ से पूरे कर पाएंगे। एंड इसी के साथ साथ इंडिया को एक फोर फ्रंट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग मैप ऑल्सो। तो फिलहाल जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है इसका एम है कि हम कुछ 24 फैसिलिटीज़ डिप्लॉय कर सकें, जिनको मिलाकर हमारी जो कंप्यूटिंग पावर हो दैट शुड बी मोर देन 64 पेटाफ्लॉप्स। तो फ्लॉप्स हमने देखा, नाउ द कंबाइंड पावर शुड बी मोर देन 64 पेटाफ्लॉप्स। जो कंप्यूटिंग पावर है उसे फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, और जब हम पेटाफ्लॉप बोल रहे हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 1 क्वाड्रिलियन ऑफ फ्लॉप्स, मतलब 1000 टेराफ्लॉप्स। तो इंडिया में फ्लॉप्स को भी हम कह रहे हैं कि पेटाफ्लॉप्स हों, कितने हों, 64 पेटाफ्लॉप्स हों, और एक पेटाफ्लॉप 1 क्वाड्रिलियन के बराबर है, 1000 टेराफ्लॉप्स। देयर आर 4 मेजर पिलर्स इन द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। हमें 4 एरियाज़ में यहाँ पे वर्क करना होगा: इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड HRD। एंड इन सब को हमें फंक्शनली एफिशिएंट करना होगा ताकि हमारा ये जो गोल है कि हम इंडिजीनियसली सुपर कंप्यूटिंग इकोसिस्टम इंडिया में क्रिएट कर सके, हम इस गोल को यहाँ पे अचीव कर पाएँ। तो अभी हमने परम अनंता सुपर कंप्यूटर के बारे में देखा। इसके अलावा भी इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि वे है अ सुपर कंप्यूटर कॉल्ड एज मिहिर। सो मिहिर अगर हम इसे क्लब कर दें विद प्रत्यूष, दे कंबाइंड, दे जनरेट सिमिलर पावर एज ऑफ परम सिद्धि। तो मिहिर और प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को मिला दें तो परम सिद्धि जितनी कंप्यूटिंग पावर आ जाती है। बट जो टॉप 100 की लिस्ट में हमारे पास आता है सुपर कंप्यूटर इंडिया में, दैट इज़ परम सिद्धि। ये हमारा सेकंड सुपर कंप्यूटर है इंडिया का जो कि टॉप 100 की रेस में शामिल हुआ। एंड परम सिद्धि इसी साल डेवलप किया गया है अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड इन अ CDAC यूनिट ओनली। जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, CDAC की यूनिट में ही इसे इंस्टॉल किया जाएगा। सो परम सिद्धि इज़ वन। इसके अलावा वी हैव प्रत्यूष। सो प्रत्यूष इज़ अ सुपर कंप्यूटर विच कैन बी यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो यही हम कह रहे थे कि अगर हम मिहिर और प्रत्यूष को मिला दें तो इनकी जो कंप्यूटिंग पावर है इट मैचेस परम सिद्धि। एंड देन वी हैव परम शिवे। परम शिवे इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया विच वॉज असेंबल्ड इंडिजीनियसली, and therefore it was installed in IIT as well, followed by Param Shakti, Param Brahma, Param Yukti, Param Sangyayak at IIT Kharagpur and respectively. तो एक चीज़ तो आपने याद रखनी है कि जो भी परम है, परम इज़ फॉर सुपर कंप्यूटर, ठीक है, चाहे परम शिवे हो, परम युक्ति हो, परम संज्ञाय हो, परम ब्रह्मा, परम शक्ति, नाउ परम अनंत, ऑल ऑफ दीज आर सुपर कंप्यूटर्स ऑफ इंडिया। लास्टली इस पूरे आर्टिकल में CDAC बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स आपको CDAC के बारे में भी पता होने चाहिए। तो CDAC मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये मेनली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आईटी सेक्टर्स में करती है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बाकी एरियाज़ हैं
वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के लिए ये एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करती है. Param 8000, which was the first supercomputer of India that was built by CDAC. And it was established after the denial of import of Kere supercomputer. Kere supercomputer, which basically used dual use technology, जिसको न्यूक्लियर वेपन सिमुलेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता था. तो जब इसके इम्पोर्ट को डिनाई किया गया उसके बाद परम 8000 इंडिया का सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया बाय CDAC. So that is all for this video. I will see you all in my next one. Thank you so much for watching.